Hey students, welcome to Study with Nivi, the easiest way to learn. And in this particular video, we are doing case study series. आपको मैंने बहुत सारे questions already solve किए हैं. Just to practice them, kindly click on the I icon above and वहाँ पे आपको इस particular topic की playlist मिल जाएगी. तो बढ़ते हैं question की तरफ. Question जो है ये surface area chapter से है. So now what is the question saying? Question saying to make the teaching learning process easier, creative and innovative, a teacher brings clay in the classroom to teach the topic mensuration. She thought this method of teaching is more interesting, leave a long lasting impact. She forms a cylinder of radius 6 cm and height 8 cm with the clay. Then she molds the cylinder into a sphere and asks some questions to students. तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया है? To make the teaching learning process easier, interesting, उन्होंने clay लेके आए हैं and clay से she made a cylinder. इस तरह से उन्होंने एक cylinder बनाया है. ओके एंड सिलेंडर की क्या इन्होंने डायमेंशंस गिवन है दैट इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट गिवन है दैट यू नीड टू यूज पाई एज 3.14. ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको कहीं सॉल्व करना है देन यू विल हैव टू यूज पाई एज 3.14. अगर नहीं यूज करेंगे तो आंसर्स में you won't be able to match your answers. Okay, कुछ decimals का फर्क आएगा या कुछ numbers का फर्क आएगा. So now moving on to the parts. Again you will be given 5 parts. आपको इसमें से 4 करने हैं. यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, they are dependent on each other. तो यहाँ पर आपको ये करना कंपलसरी हो जाता है. You cannot leave it. 2 आप फिर भी छोड़ सकते हैं but 1 you will have to do because without doing 1 you won't be able to do 2. So now part number 1 says find the radius of the sphere so formed. तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, जब इस तरह से जो टीचर ने सिलेंडर बनाया यूजिंग द क्ले एंड देन सेम सिलेंडर को शी मेड उसने उनको राउंड कर दिया एंड शी मेड द स्फीयर. तो इस केस में व्हाट रिमेन सेम, द वॉल्यूम. जितना उन्होंने मटेरियल लिया था क्ले का उतने से ही उन्होंने सिलेंडर बनाया और सेम वॉल्यूम से उन्होंने स्फीयर बनाया है. ठीक है, सो द वॉल्यूम इन दीज केसेस रिमेन्स द सेम. So now, what else is given to you? They have asked you to find the radius of the sphere so formed. तो अब हमें यहाँ पर इतना तो पता है that volume of cylinder is equals to volume of sphere, right? So now, what is the formula for volume of cylinder? Cylinder के volume को हम इसका जो radius है इसको r ले लेते हैं और sphere के radius को r1 ले लेते हैं ताकि दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो. Now volume of cylinder is equals to pi r square h and what is the volume of sphere? That is equal to 4 by 3 pi r cube. So now pi and pi cancels off, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी and this is r1. What is r over here is 6 multiplied by 6, that is the radius of the cylinder and height of cylinder is 8 centimeter. This makes it 4 by 3 into again radius we need to find out, so as it is. Now taking these things on the left hand side you will get 6 multiplied by 6 multiplied by 8 multiplied by 3 divided by 4. ठीक है, 3 was in division तो right hand left hand side जाके वो multiplication में हो गया, 4 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है is equals to r1 cube which makes it 4 1s are 4 2s are which means 6 multiplied by 6 multiplied by 6 is equals to r1 cube और 6 का cube is equals to r1 cube which makes r1 is equals to 6 centimeter. So this is how you will find the radius of the sphere so formed. ठीक है, since उसी क्ले से हमने सेम को राउंड करके मोल्ड करके आपने वहां पे स्फीयर बनाया है, therefore the volume remains same. So now the correct option over here is part number A, that is 6 centimeter. Now coming on to part number B, they have asked you to find the volume of the sphere so formed. So as I told you, यहाँ volume निकालना कब possible था? जब आपको radius पता हो. So आपने देखा part number 2 is dependent on part number 1. तो जब पार्ट नंबर 1 सॉल्व ही कर लिया है तो फटाफट वॉल्यूम भी निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 by 3 pi r cube. Good. So this is 4 by 3 pi r cube which becomes 4 by 3 into what is pi? Pi को हमें लेना है 3.14 as it was already discussed while we were reading the question. Now r1 कितना है यहाँ पे? अभी अभी हमने पीछे पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किया, that is 6 into 6 into 6, that will give you
2, which will give you 8 multiplied by 36 multiplied by 3.14. ये कैलकुलेशन आपको बहुत फटाफट करनी होगी, तो प्लीज विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप इस कैलकुलेशन में लग जाना बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है. सो नाउ द आंसर ओवर हियर यू विल गेट 904.32 आफ्टर सॉल्विंग दिस. एंड सिंस दिस इज वॉल्यूम तो इसका यूनिट लगाना नहीं भूलना, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड सिंस वी वर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम, देयरफॉर इट हैज टू बी क्यूब. Good. So now as you can see, which is the correct option over here? C is the correct option. Okay, now coming on to part number 3, they have asked you to find the ratio of the volume of sphere to the volume of cylinder. ये देखने में जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन लगे, बिलीव मी इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ना, बहुत इजी होते हैं. They have asked you to find the volume of sphere to the volume of cylinder. इनका सिर्फ आपको रेशियो फाइंड आउट करके देना है. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला इज 4/3 पाई r1 क्यूब, बिकॉज हमने स्फीयर का रेडियस r1 सपोज किया हुआ है. एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h. नाउ पाई एंड पाई कैंसल्स ऑफ. आपको लगानी है r1 की वैल्यू, जो कि अभी हमने पिछले फर्स्ट जो पार्ट है उसमें सॉल्व किया था, दैट इज 6 × 6 × 6. एंड यहाँ पर आपको अगेन सिलेंडर का रेडियस लिखना है, विच इज अगेन 6, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, एंड दिस इज 4/3. ठीक है. नाउ 6 and 6 कैंसल्स ऑफ, दिस 6 and 6 कैंसल्स ऑफ. आपके क्या पास क्या बचा है? 6 × 4/3 multiplied by 8. Done. Easy. Now what you have is 1/2 and 1/2, which makes it 2/2, that is equal to 1:1. So the ratio of the volume of sphere and cylinder is 1:1. इसको पता है, आप बिना सॉल्व किए भी यहाँ पे आंसर कर सकते थे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आप किसी चीज को मोल्ड करते हो, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे शेप को मोल्ड किया, व्हाट रिमेन्स सेम? द वॉल्यूम रिमेन सेम. ये हमें शुरू से पता था. तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी करते, देन ऑल्सो यू कुड हैव रिटन द आंसर 1:1, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन सेम. दोनों का वॉल्यूम सेम होता, कैंसिल हो जाती जो दोनों फिगर हैं, अगर आप पूरा सॉल्व भी करना चाहते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर 1:1. सो इट वॉज दैट इजी. सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करके देना ही नहीं है. यू जस्ट नीड टू अटेम्प्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, वहां पे आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं है. नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है. तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इट इज द कर्व्ड साइड, राइट? इट इज द कर्व्ड साइड. एंड कर्व्ड साइड कितनी है आपके पास यहाँ पर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr(h) प्लस दोनों साइड की सर्कल्स को मिला के द फॉर्मूला बिकम्स 2πr², विच मीन्स 2πr plus h इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. अब आप यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करोगे. पाई को क्या लेना है? एज दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पाई को लेना है आपको 3.14 इंटू आर कितना है? 6 × 6 प्लस what is the height? 8, which means 2 multiplied by 3.14 into 6 into 14, and that will give you 527.52 centimeter square, because हम यहाँ एरिया फाइंड आउट कर रहे थे. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर आंसर. अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आप फंस सकते हो, जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, आप इसको स्किप भी कर सकते थे, बिकॉज पार्ट नंबर 5 इज रियली इजी. सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे कौन सा पार्ट स्किप करना चाहिए था, आई वुड रिकमेंड कि आप ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे स्किप कर सकते थे, बिकॉज पार्ट नंबर 5 इज रियली इजी. यहाँ पे पूछा गया है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप. मैं बहुत देर से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप रिमेन्स अनऑल्टर्ड. कोई चेंजेस नहीं होता है, दोनों के वॉल्यूम जो है वो सेम रहते हैं. सो द आंसर इज रियली इजी ओवर हेयर. यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया है? द आंसर इज part number C, remains unaltered. So thank you so much students for connecting with me over here at Study with Nevi. I know आप इस तरह के क्वेश्चंस और यहाँ प्रैक्टिस करना चाहेंगे. So to practice these kind of questions, kindly subscribe to my channel, that is Study with Nevi. And till then, stay blessed and keep practicing.